Welcome back everyone to the channel Kingdom Zoology. Today we are going to do an important topic of biotechnology. I've been receiving a lot of requests from 12th class students regarding biotechnology applications of this topic are in interference, and definitely it is a high impact topic because biotechnology itself is a high impact chapter. 8-9 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी से एक सिंगल नीट एग्जाम में, दैट इज अराउंड 2023. Similarly, around 6-7 questions biotechnology से आते ही आते हैं हर साल, तो the chapter itself carries a very high weightage. And RNA interference also is of course an important topic जिसमें से you can always expect at least one question every year. प्लस थोड़ा सा टिपिकल भी है, एनसीईआरटी में ठीक से एक्सप्लेन करा भी नहीं हुआ है, तो इसको देख लेते हैं एक बार. द डिटेल्स ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस वी कैन सी ऑन पॉपुलर डिमांड. The rest of biotechnology जैसा हमारा सीक्वेंस चल रहा था, that will continue as such. I'll keep uploading more videos, but in between RNA interference, the application of biotechnology. Application of biotechnology to make crop plants, for example, what? Tobacco, which is a cash crop, which means, why am I growing tobacco in my fields? Obviously to sell and earn from it, right? So application of biotechnology to make crop plants, for example, tobacco, resistant to a root knot nematode parasite. That is the purpose of this technology. That is the purpose why the technology was developed. अब nematode, as you might recall from class 11th, कौन होते हैं? Roundworms or phylum Aschelminthes. Okay. So in the RNA interference, we need to first understand that plants like tobacco, Arabidopsis, that's another type of plant, etc., get infected by pests or parasites, we can say, like the name of the parasite that we'll be discussing here in this section, RNA interference, that is Meloidigyne incognitia. Meloidigyne incognitia ही basically biological name है किसका? रूट नॉट नेमेटोड पैरासाइट का, which is basically a roundworm or Ashkelminth parasite found inside the roots of these infected plants. तो पहले मतलब प्रॉब्लम समझ लेते हैं क्या है, फिर समझेंगे कि भाई आरएनए इंटरफेरेंस क्यों डेवलप किया है, कैसे हेल्प करेगा. तो प्रॉब्लम ये है कि प्लांट्स हैं लाइक टोबैको एंड अरेबिडोप्सिस, उनको इन्फेक्ट करता है कौन? मेलोइडिगानी इनकॉग्निशिया, the root knot nematode parasite. It's a roundworm parasite found inside the roots of these, inside the root cells of these plants. So can you notice यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट हमारे को समझ में आ रहा है, वो ये कि एश्केलमिंथ एनिमल है जो प्लांट के रूट के सेल के अंदर है, बिकॉज एश्केलमिंथ इज गॉट अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन साइज, माइक्रोस्कोपिक से लेके बड़े साइज के हो सकते हैं. सो राउंडवर्म और एश्केलमिंथ पैरासाइट फाउंड इनसाइड द root cells of these plants. And if it is found inside the root cells of these plants, what does it cause? Tumor growths in the roots. That means root knots. बाद में हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे इसका, उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, where an infected plant's roots have been shown which are swollen with knots in them. Knots के बेसिकली ट्यूमर्स हैं जो किसने कॉज किए हैं? मेलोइडिगाइनी इनकॉग्निशिया ने. तो इसी चीज को जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक डायग्राम की फॉर्म में अगर देखें, तो लेट्स से दिस इज योर
infected plant root cell. ये प्लांट के रूट का इन्फेक्टेड सेल है. कौन से प्लांट? अरेबिडोप्सिस या टोबैको. और इनके अंदर बेसिकली ये कौन है हमारा? दिस इज द राउंडवर्म, दैट इज रूट नॉट नेमेटोड पैरासाइट. अब पैरासाइट के अंदर बेसिकली क्या, इसका जीनोम है या डीएनए कह लो. The genome or the DNA of the parasite is going to get transcribed और उससे क्या बनेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA of the pathogen. इसका फिर आगे क्या होना है? ट्रांसलेशन. एंड इसके ट्रांसलेशन से बेसिकली बनेंगे कुछ प्रोटीन्स. Proteins which will be used by the parasite to grow. But the problem with these proteins is they basically induce a rapid mitosis or tumor in the infected cell. तो ये इन्फेक्टेड सेल के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा. तो इसके जैसी और भी जो सेल्स हैं जिनके अंदर यही पैरासाइट प्रेजेंट है, उनमें भी सब में अनकंट्रोल ग्रोथ शुरू होगा. एंड अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी नॉट्स और ट्यूमर्स फॉर्म्ड इन द रूट्स ऑफ द प्लांट. तो इन्फेक्टेड सेल के अंदर अगर रूट में ट्यूमर्स बनेंगे तो ट्यूमर सेल्स क्या होती हैं? जैसे कि हमने कैंसर में पढ़ा है हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, नॉन फंक्शनल, वो सिर्फ रैपिडली डिवाइड करते हैं, काम कुछ नहीं करते. तो एज अ रिजल्ट प्लांट सेल का क्या हो जाएगा, या मतलब प्लांट का पूरा ओवरऑल क्या हो गया? डेथ. सो इसका मतलब हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्टिविटी था वो क्या हो गया यहाँ पे? अफेक्ट. प्लांट डाइज एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप ऑब्वियसली रिड्यूसेस. तो ये प्रॉब्लम है अगर प्लांट के अंदर इन्फेक्शन है रूट नॉट नेमेटोड पैरासाइट से. चलो ठीक है जी, इन्फेक्शन हो गया. इन्फेक्शन का रिजल्ट क्या है कि प्लांट मर गया, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई. बट लेट्स से जब पैथोजन प्रेजेंट था या जब पैथोजन एंटर करता है इनसाइड द इन्फेक्टेड प्लांट रूट सेल, तो क्या प्लांट रूट सेल का कोई डिफेंस मैकेनिज्म भी है अगेंस्ट द पैरासाइट? यस, होना चाहिए. इन द सेम चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड इन द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट अगर ये लेट्स सपोज कोई बैक्टीरिया सेल होता और इसके अंदर कौन आते हैं? बैक्टीरियोफाज वायरसेस. तो बैक्टीरियोफाज वायरस का जीनोम जब आता है तो अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन मिथाइलेशन सिस्टम का पार्ट. रिस्ट्रिक्शन मिथाइलेशन में मिथाइलेज एंजाइम बैक्टीरिया के अपने क्रोमोसोम को क्या करता है? मिथाइलेट. और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अनमिथाइलेटेड जीनोम जो किसका होगा? वायरस का, उसको डैमेज या डाइजेस्ट कर देते हैं. तो अल्टीमेटली वायरस का ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो गया होस्ट सेल के अंदर, इसलिए इन एंजाइम्स का नाम क्या था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. If you want more details on restriction endonucleases, refer to the other videos that have been shared in the biotechnology playlist. So you'll be able to understand what restriction endonucleases are, how their knowledge came into existence, how many types of endonucleases are there, type 1, type 2, type 3, all that has already been shared in another video in biotechnology. So as of now, let's focus on the plant cell only. This was your plant cell, the infected plant cell in which root knot nematode parasite has entered. The parasite genome codes for RNA. The RNA codes for or translates for proteins. And once the proteins are formed, these proteins will be used by the parasite for its own growth, as well as the same proteins will be inducing tumor growths in the plant cell called the root nodes. तो अब इसमें अगर लेट्स सपोज प्लांट ने अपने आप को बचाना है तो कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म एम्प्लॉय करना पड़ेगा. तो वो एक बार समझ लेते हैं. द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट सेल, एंड सिर्फ प्लांट सेल का नहीं, एक्चुअली हर यूकैरियोटिक सेल का डिफेंस मैकेनिज्म होता है. द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ this plant cell, and not just this plant cell, as I told you, all eukaryotic cells. Prokaryotic cells का natural defense mechanism है restriction methylation system. Eukaryotic cells का natural defense mechanism है RNA interference, the technique that we are learning over here.
The natural defense mechanism of the plant cells, as well as all the eukaryotic cells, against such intracellular pathogens is RNAi. That stands for RNA interference. तो यहाँ पे नाम से लग रहा है कि भाई इस टेक्निक में कोई ना कोई आरएनए इन्वॉल्व होगा और वो किसी ना किसी प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर करेगा. तो दैट इज व्हाई द टेक्निक इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस. तो प्लांट का अपना खुद का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका नाम क्या है? आरएनए आई. हाउ डज इट वर्क? लेट्स सी. देयर आर सम निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, मतलब ऐसे जीन्स जो अभी एक्टिवेट होंगे जब निमेटोड इन्फेक्शन सेल के अंदर प्रेजेंट है. देयर आर सम निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, लेट्स से प्रेजेंट इन द इन्फेक्टेड सेल्स जीनोम और क्रोमोसोम. कुछ निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स होते हैं इन्फेक्टेड सेल के अपने जीनोम या क्रोमोसोम में, which have property of both the strands. इन जीन्स के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं बेसिकली परफॉर्मिंग ट्रांसक्रिप्शन एट द सेम टाइम. तो नॉर्मली डीएनए से क्या होता है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनता है. बट यहाँ पे क्या होगा? डीएनए से जो मतलब जीन्स हैं प्लांट के, द निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स, दे हैव गॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स परफॉर्मिंग ट्रांसक्रिप्शन एट द सेम टाइम, producing what? A double stranded mRNA. तो ये बेसिकली एज यू कैन नोटिस एक नया टाइप का चीज मिल गया. नॉर्मली तो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए ही बनना था, बट ओवर हियर व्हाट इज बीइंग फॉर्म्ड अ डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए. इसको अगर साथ साथ में यहाँ पे हम दिखाएं तो ये देखो, ये प्लांट का बेसिकली खुद का क्या है? निमेटोड स्पेसिफिक जीन. ऑफ द प्लांट. निमेटोड स्पेसिफिक जीन के दोनों स्ट्रैंड्स का बेसिकली क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन. और अगर दोनों स्ट्रैंड्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आप ये समझो कि भाई इससे ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? मान लो एक ये वाला स्ट्रैंड बन गया, और जो आपका ये वाला स्ट्रैंड है इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उससे फिर एक और एमआरएनए बन गया. तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बन गया? बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए कोड हो गया या ट्रांसक्राइब हो गया. ये सब सेल ने कब करना है? जब सेल इन्फेक्टेड है, प्लांट सेल. ये उसका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है. लाइक यू रिमेंबर इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमने कब अपना एक्टिवेट करना है? जब पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, जब इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एस्टैब्लिश हो गया है, दैट इज व्हेन स्पेसिफिक इम्यूनिटी गेट्स एक्टिवेटेड. तो यही प्लांट का हिसाब है कि जब प्लांट सेल के अंदर इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट इज व्हेन इट इज गोइंग टू एक्टिवेट इट्स RNA interference defense mechanism, in which some nematode specific genes will be ट्रांसक्राइब्ड. दोनों स्ट्रैंड्स का एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होगा और उससे बेसिकली क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए. ठीक है. आफ्टर दिस देयर आर सर्टेन एंजाइम्स इनसाइड द प्लांट सेल जिनका नाम है डाइसर्स. डाइसर्स, दैट इज द एंजाइम्स डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए. जो किसने प्रोड्यूस किया है? निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स ने. इन्होंने इसके लिए कोड किया है. ठीक है. सो द डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए is digested by dicers
So dicers, that is the enzymes, digest this long double-stranded mRNA and break it down. Dicers digest the long double-stranded mRNA and break it into many small sized but still double-stranded mRNAs, जिनका सबका मिला के कॉमन नेम क्या होता है? siMRNA. That is, S is for small, I is for interfering. Small तो चलो ठीक है भाई, साइज है. इंटरफेयरिंग क्या है वो भी समझेंगे एक मिनट में. siMRNA, that is small interfering mRNA. तो डाइसर एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जो बेसिकली आपका लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड mRNA बना, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें? इनटू मेनी स्मॉल पीसेस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. रहेगा डबल स्ट्रैंडेड ही, लेकिन पहले एक सिंगल बड़ा सा पीस हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का था, वो ब्रेक हो गया किसमें? छोटे छोटे कई सारे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर, जिनका नाम है siMRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग mRNA. ठीक, चलो अब ये स्मॉल इंटरफेयरिंग mRNA क्या करेंगे? These siMRNA attach to an enzyme complex called RISC. ये जो सिंगल मतलब स्मॉल इंटरफेयरिंग mRNA बने, छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड mRNA पीसेस, दे अटैच टू एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड RISC, जिसका फुल फॉर्म है RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. RISC, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. siMRNA किसको जाके अटैच हो गया? RISC को, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स को, which is a group of enzymes. If you look at the name of the enzyme complex, RNA induced, क्योंकि इसको इंड्यूस करेगा कौन काम करने के लिए? siMRNA. siMRNA इस एंजाइम को इंड्यूस करेंगे कि अपना काम करना शुरू कर दे. तो इसका मतलब एंजाइम कॉम्प्लेक्स किससे इंड्यूस होता है? siMRNA से. So these siMRNA attach to an enzyme complex called RISC and induce the RISC enzymes to get activated or become functional. तो मतलब पहले RISC काम करनी, प्रेजेंट पहले से था RISC बट काम नहीं कर रहा था. काम करवाएगा कौन? siMRNA. वो RISC के ऊपर अटैच करेंगे और उसको क्या कर देंगे? एक्टिवेट. And then this functional RISC, इसका रोल अब आगे क्या है? The functional RISC, that is the functional RNA induced silencing complex, which is just started acting because siMRNA उसको क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट. तो ये जो फंक्शनल RISC है, इसने अब जाके बेसिकली क्या करना है? जो पैथोजन का सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA था, उसको डाइजेस्ट कर देना है. So once again, if you recall restriction methylation system of the bacteria, बैक्टीरिया के restriction methylation system में क्या होता है कि भाई पैथोजन बाहर से आया, वायरस, तो बैक्टीरिया ने अपने खुद के जीनोम को क्या कर लिया? मिथाइलेट, मिथाइलेशन से प्रोटेक्ट कर लिया, और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से पैथोजन के जीनोम को डाइजेस्ट कर दिया. तो लगभग यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, इवन तो इसमें कोई सेल्फ जीनोम को प्रोटेक्ट करने का कोई स्टोरी नहीं है. इसमें बेसिकली क्या है कि प्लांट सेल के अंदर निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट हैं, एंड दोज निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर बेसिकली एक्टिवेटेड or you can say expressed when there is a requirement. Okay, तो रिक्वायरमेंट कब है निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स के एक्टिवेट होने का? दैट इज व्हेन द इन्फेक्शन इज ऑलरेडी देयर. तो प्लांट सेल के अंदर हमारा इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए, जस्ट अ सेकेंड, या तो प्लांट सेल हमारी बेसिकली क्या है? दैट इज इन्फेक्टेड, एंड इन्फेक्टेड प्लांट सेल को अपने आप को डिफेंड करना है. सो हाउ डज द इन्फेक्टेड प्लांट सेल एक्चुअली डिफेंड इटसेल्फ?
Sorry, the screen got stuck, so I had to restart it. Anyways, here's the infected plant cell. Infected plant cell के अंदर रूट नॉट नेमेटोड पैरासाइट प्रेजेंट है. पैरासाइट बेसिकली क्या कर रहा है, ट्यूमर्स कॉज कर रहा है. प्लांट सेल ने अपने आप को डिफेंड करना है. प्लांट सेल ने अगर अपने आप को डिफेंड करना है तो इसका कुछ करना पड़ेगा, इस ट्रांसलेशन को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या हो रहे हैं, ट्यूमर. तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट सेल क्या करता है, एक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन जो ऑलरेडी प्लांट सेल के अंदर है उसको ट्रांसक्राइब करता है. दोनों एंड्स को एक साथ डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना. उससे बेसिकली क्या बन गए, डाइसर एंजाइम्स की हेल्प से छोटे पीसेस डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए के, जिनका नाम है SImRNA, दैट इज स्मॉल इंटरफेयरिंग एमआरएनए. स्मॉल इंटरफेयरिंग एमआरएनए किसको जाके अटैच करते हैं, RISC, RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को. और RISC बेसिकली क्या हो गया, इससे एक्टिवेट. एक्टिवेट करके RISC क्या करेगा, इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA ऑफ द पैथोजन इनटू पीसेस. सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए जो पैथोजन का था वो पीसेस में डाइजेस्ट हो गया. डाइजेस्ट हो गया तो प्रोटीन प्रोडक्शन बंद हो गया. प्रोटीन प्रोडक्शन बंद हो गया तो ट्यूमर ग्रोथ बंद हो गई. तो एज अ रिजल्ट प्लांट सेल ने अपने आप को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट. सो व्हाट डिड वी लर्न ओवर हियर, अगर प्लांट सेल ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो किसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, RISC को. बट RISC को एक्टिवेट करने के लिए क्या लगेंगे, SImRNA. SImRNA कौन प्रोड्यूस करवाता है, डाइसर्स. किससे, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए से. बट वो डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए होगा आपको, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स के दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा. तो एक बार RISC एक्टिवेट हो गया तो काम हो गया हमारा, पैथोजन का सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए डाइजेस्ट हो गया, ट्यूमर होने बंद हो गए. तो व्हाट डिड वी नोटिस ओवर हियर, why is this technique called RNA interference? It's called RNA interference because ये वाले या ये वाले RNA इस RNA की ट्रांसलेशन के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस. किसको एक्टिवेट करके, RISC को. लिसन टू दिस अगेन, this mRNA or these mRNA are interfering with the translation of pathogen mRNA. That's why the technique is called RNA interference. और यहाँ तक आपने देखा कि हमने कुछ नहीं किया, बायोटेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, कि ये तो नेचुरली चल रहा है प्लांट सेल के अंदर. क्यों, क्योंकि ये प्लांट सेल का अपना खुद का क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म. Okay, the SImRNA attached to an enzyme complex called RISC on activation by SImRNA, RISC binds to and then digests the single stranded mRNA of the pathogen. हो गया काम. So we can see that the SImRNA जो प्रोड्यूस हुए थे किससे, फ्रॉम द लॉन्ग double stranded mRNA. The SImRNA produced from the long double stranded mRNA interfere with the expression or translation of the pathogen's mRNA. That's why we call it RNA interference, where these RNA are interfering with the expression of the pathogen RNA. ये RNA इंटरफेरेंस है और ये प्लांट सेल के खुद के अंदर है एज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म. तो भाई बायोटेक्नोलॉजी कहाँ है इसमें, फिर वो देख लेते हैं. लाइक लेट्स सपोज मेरी बॉडी में कोई पैथोजन आ गया, तो यू नो आई एम सपोज टू एक्टिवेट माय इम्यून सिस्टम. बट अगर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाया टाइम से तो क्या होगा, डिजीज हो जाएगा. तो प्लांट में भी बस एग्जैक्टली वही है. इफ द नेचुरल RNAi मैकेनिज्म चालू होना चाहिए था जीन्स के एक्सप्रेशन से, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स के एक्सप्रेशन से. बट प्रॉब्लम है कि भाई अगर वो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स ही प्लांट के म्यूटेटेड हो, ये वाले ये जीन्स ही म्यूटेटेड हैं, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेंगे, ये एक्टिवेट नहीं होगा और ये अपना अनहिंडर्ड ग्रो करता रहेगा. तो बस यही प्रॉब्लम है जिसको ठीक करना है बायोटेक्नोलॉजी से.
if RNAi mechanism fails to start on its own, then the plant cell becomes infected permanently. क्योंकि पैथोजन तो फिर जाएगा ही ना, एक बार अंदर तो आ गया, अंदर आने के बाद उसने ट्यूमर की शुरुआत भी करवा दी। हाउएवर अगर आरएनएआई इनिशिएट हो जाता है तो इन दैट केस ट्यूमर ज़्यादा टाइम तक चलेंगे नहीं, तो थोड़ी देर में क्या होंगे, ट्यूमर ग्रोथ होनी बंद हो जाएंगी एंड द प्लांट विल बेसिकली बिकम रेजिस्टेंट टू द रूट नॉट नेमेटोड पैरासाइट। प्रॉब्लम लेकिन यहाँ पे ये आ रही है कि अगर आरएनएआई एक्टिवेट नहीं होता है तो क्या सिचुएशन होगा, तो ये सिचुएशन होगा कि प्लांट सेल परमानेंटली इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसके अंदर ट्यूमर्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो अब हमने इस इन्फेक्टेड प्लांट सेल की हेल्प करनी है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। हाउ? लेट्स सी। Now in such cells, the reason why RNA interference fail to start, the major, or in fact in most of the cases the only reason in such cells, the reason why RNAi fail to start can be mutations or lack of expression of the nematode specific genes। वो जो nematode specific genes infected cell ने अभी फिलहाल ट्रांसक्राइब करवाने थे, दोनों strands ट्रांसक्राइब करवाने थे, so that we could have got a double stranded mRNA and then we could have produced siRNA from it and then we could have activated the RISC and that was our purpose। So in such cells where RNAi has failed to act, तो reason क्यों fail हुआ होगा क्या, या तो mutation या lack of expression of what, the nematode specific genes। So what should I do then? So nematode specific genes, which are mostly lab synthesized synthetic gene sequences. So nematode specific genes are introduced in this plant। क्योंकि खुद का तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, काम नहीं कर रहा, तो अब बाहर से हमने क्या करना है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस करने हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? सबसे कॉमन मेथड तो प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करने का है किसी भी जीन को, टीआई प्लाज्मिड वेक्टर। To understand what is TA plasmid vector, you can refer to the tools and technique notes that I'll upload later. So nematode specific genes, जो कि lab synthesized genes हैं, they are introduced in this plant via number 1 option TA plasmid vector, जो कौन से बैक्टीरिया से हमने निकाला था, from Agrobacterium tumefaciens। तो ये सबसे कॉमन वेक्टर है प्लांट सेल्स के लिए। आपने कोई डिजायर्ड जीन प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो डायरेक्टली तो इंट्रोड्यूस करना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज देयर इज नो गारंटी कि प्लांट सेल उनको लेगा, एक्सेप्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। बट अगर लेट्स सपोज आप किसी जीन को प्लांट के अंदर विद हेल्प ऑफ अ वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो दैट मेक्स मोर सेंस नाउ। तो आपने क्या करना है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन लैब सिंथेसाइज्ड हैं, उनको टीआई प्लाज्मिड वेक्टर पे अटैच किया और फिर उनको डालना है किसमें, इनटू द डिजीज प्लांट सेल। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, आप निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को किसी ट्रांसपोजोन के ऊपर अटैच कर देते हैं। ट्रांसपोजोन्स क्या चीज़ हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। तो ये आपका बेसिकली कौन है, ट्रांसपोजोन्स। इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, मेरा डिजायर्ड जीन भी अटैच कर दिया विच इज द निमेटोड स्पेसिफिक जीन, और इसको फिर आपने बेसिकली कहाँ पे डाला, इन्फेक्टेड प्लांट सेल में। तो नॉर्मली जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी ये होता है कि भाई वो प्लांट के डीएनए के अंदर जाके क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट।
ठीक है। बट हमने यहाँ पे जो ट्रांसपोजोन लिया है वो बेसिकली स्पेसिफिकली वो वाला ट्रांसपोजोन लिया है जो अंदर जाके बिना क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट किए हुए भी डायरेक्टली अपना आरएनए के लिए कोड कर सकता है या ट्रांसक्राइब कर सकता है। क्योंकि जब ये ट्रांसपोजोन ही डायरेक्टली अंदर जाके आरएनए बनाना शुरू कर देगा तो ये जो हमारे नीमेटोड स्पेसिफिक जीन थे इनसे भी बेसिकली क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। कौन? SI-mRNA, आई मीन डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए, जो कि ब्रेक होगा आगे किसमें, SI-mRNA में। तो ऑप्शन वन ऑफ डिलीवरिंग द निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इनटू द प्लांट इज टी आई प्लाज्मिड वेक्टर। ऑप्शन टू, transposons which transcribe for RNA in the infected cell। वैसे ट्रांसपोजोन्स को अल्टीमेटली जाके डीएनए के अंदर इंटीग्रेट होना है, बट ये जो ट्रांसपोजोन हमने यूज किया है ऐसा यूज करना है जो पहले मतलब प्लांट के डीएनए में इंटीग्रेट करने से पहले ट्रांसक्राइब करके पहले आरएनए बना ले। So nematode specific genes are introduced in this plant via transposons that transcribe for RNA in the infected cell before integrating in the plant's जीनोम और डीएनए। ट्रांसपोजन को मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, जाके किसी भी डीएनए से के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। बट इंसर्ट होने से पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोजन आरएनए के लिए भी कोड कर रहा है, सो दैट आवर nematode specific genes also get transcribed and a double-stranded mRNA is obtained, so that our nematode-specific genes can also get transcribed and a double-stranded mRNA is obtained, which can then be converted into siRNA, initiating RNAi। तो मैंने बेसिकली निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स बना लिए हैं, वो जो कि प्लांट के खुद के अंदर होने चाहिए थे बट वहाँ पे है नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो ऐसे निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को मैंने प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। ऑप्शन वन, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को टीआई प्लाज्मिड वेक्टर पे अटैच करते हैं और प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। टीआई प्लाज्मिड वेक्टर मिलता किससे? एग्रोबैक्टीरियम प्रिमिफेशंस बैक्टीरिया से। दूसरा ऑप्शन, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को आप ट्रांसपोजोन्स के ऊपर अटैच करोगे। ट्रांसपोजोन्स है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिनको जाके प्लांट के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होना है, बट इंटीग्रेट होने से पहले बेसिकली वो क्या करते हैं, आरएनए के लिए ट्रांसक्राइब करते हैं। तो अगर ट्रांसपोजोन पे ही आपका निमेटोड स्पेसिफिक जीन लगा है तो जब ट्रांसपोजोन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो साथ में आपके निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा। वही हमें चाहिए था, उससे हमें डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए मिल जाएगा। उसको फिर आगे SI mRNA में कन्वर्ट कर लेंगे और RNAi को इनिशिएट कर लेंगे। एंड द थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ विच आप निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कैसे है? विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस वेक्टर्स। नॉर्मली रेट्रोवायरस वेक्टर्स प्रेफर्ड वेक्टर नहीं है प्लांट सेल्स के लिए। रेट्रोवायरस वेक्टर्स को हम लोग यूज करते हैं एनिमल सेल्स में डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, बट यहाँ पे ठीक है, ये भी चल जाता है एक ऑप्शन। ओके, सो अल्टीमेटली आइडिया ये कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को आपने प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? टीआई प्लाज्मिड वेक्टर की हेल्प से, ट्रांसपोजोन्स की हेल्प से जो आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू पहले ट्रांसक्रिप्शन करते हो डीएनए में ऑफ प्लांट में इंटीग्रेट होने से पहले, या फिर रेट्रोवायरस वेक्टर्स की हेल्प से। किसी भी मेथड से आपने अल्टीमेटली प्लांट के अंदर डिलीवर करवा दिया आपका क्या, निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स। तो बस हो गया काम, अब क्या है, खत्म। The nematode specific genes introduced inside the plant cells the nematode specific genes introduced in the plant cells
कैसे इंट्रोड्यूस किए? रेट्रोवायरस, ट्रांसपोजोन या फिर टीआई प्लाज्मिड वेक्टर की हेल्प से। द नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस इन द प्लांट सेल्स initiate the RNAi making the plant cell disease free। हो गया काम, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस करवा दिए, आरएनए स्टार्ट हो गया जो कि नेचुरली नहीं कर रहा था। दैट्स योर बायोटेक्नोलॉजी। With this we made, I mean that's the RNA interference in biotechnology, and with this we made tobacco as well as Arabidopsis plants completely resistant to root knot nematode parasite. So this is basically your RNA interference technique. अब ऐसा करते हैं, इसकी NCERT में एक बार तुम लोगों से शेयर कर देता हूँ so that you'll know what exactly are we trying to learn over here. Okay, so for that let me just bring a copy of NCERT here. Here, that's your biotechnology application, and here's the RNA interference that we were just studying. Pest resistant plants, ये है NCERT का RNA interference content. Let's read it. Several nematodes parasitize a wide variety of plants and animals, including human beings. Humans में भी होते हैं ना, Ascaris, Wisteria, ये सब भी roundworm parasites हैं nematodes. तो human में भी होते हैं, plants में भी होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एक nematode है, the Meloidiganium cognitia. It infects the roots of the tobacco plant and causes a great reduction in the yield by doing what? Damaging the roots. Look at this picture. ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाई ये जो रूट्स हैं ये किसकी हैं? कंट्रोल प्लांट की। कंट्रोल प्लांट किसको कहते हैं? जिसके अंदर आपने कोई RNAi इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो कंट्रोल प्लांट वो है जिसमें RNAi इंट्रोड्यूस नहीं करा गया। तो यहाँ पे दिख रहे हैं सब चीजें, जो एरोस से मार्क करे हुए हैं, ये यही बेसिकली कौन है? नॉट्स। नॉट्स जो कहाँ पर बने हुए हैं? इन द रूट। इफ यू लुक एट दिस, ये ऊपर इसका स्टेम आ गया ग्रीन वाला पार्ट, तो ये सब क्या बना हुआ है? दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो रूट्स के अंदर बेसिकली क्या बने हुए हैं? नॉट्स। ये नॉट का या रूट नॉट का बेसिकली क्या मैग्नीफाइड व्यू है। और तो ये ऐसा कुछ दिखेगा इन्फेक्टेड प्लांट, उसके रूट्स के अंदर ट्यूमर्स या नॉट्स बने होंगे और वो मर जाएगा अगर उसमें RNA इंटरफेरेंस काम नहीं करेगा तो। ठीक है। A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process called RNAi or RNA interference. RNAi takes place in all the eukaryotic organisms as a method of natural cell defense, and this method involves silencing of a specific mRNA. Whose mRNA are we talking about here? Of the pathogen. Silencing of a specific mRNA of the pathogen due to a complementary double-stranded RNA molecule. Who is complementary double-stranded RNA molecule here? The long double-stranded mRNA, which is cut by dicers, or which is the source of siRNA. तो वो जो लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड mRNA बनता है जिससे आगे फिर हम डाइसर्स की हेल्प से siRNA बनाते हैं, उसको यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA. So there will be silencing of a specific mRNA of the pathogen due to a complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevents the translation of the mRNA, that is silencing. तो रियलिटी ये है कि भाई देखो, ये तो आके बाइंड नहीं करता है इसको। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA पहले siMRNA में कन्वर्ट होगा। siMRNA फिर RISC को एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेशन के ड्यूरिंग siMRNA RISC से ही चिपके रहते हैं, और वो फिर आगे बेसिकली ये जो आपका mRNA ऑफ पैथोजन उसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट। तो एक तरीके से ये भी हो गया कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA है, मतलब कौन? siMRNA, यही जाके एक तरीके से बाइंड कर रहा है किसको? along with the RISC पैथोजन के mRNA को। So this method involves silencing of a specific mRNA of the pathogen
due to a complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevents translation of the mRNA silencing. ठीक, तो अल्टीमेटली कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए siMRNA में कन्वर्ट हुआ, RISC से अटैच हुआ और इसने जाके इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो एक तरीके से जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड mRNA था वही जाके अटैच हो गया किस पे, पैथोजन के mRNA को विद हेल्प ऑफ RISC और उसको कर दिया डाइजेस्ट। ठीक है, तो नॉर्मली तो ये प्रोसेस खुद सेल के अंदर होना चाहिए था, बट अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी आ गई कि जो सोर्स है ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, दिस लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड mRNA, जिससे हमने क्या बनाने हैं siMRNA। तो ये अगर सेल का अपना खुद का इनिशिएट नहीं हो रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम। यहाँ पे इन्फेक्शन का मतलब अगेन क्या लिखा हुआ है, एंट्री। एंट्री किसकी, वेक्टर की। तो ये जो वायरस हैविंग आरएनए जीनोम है ये कौन है, वेक्टर। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स या ट्रांसपोजोन्स कौन है, vectors that replicate via RNA intermediate. And using agrobacterium vector मतलब TI plasmid also, ये भी कौन है, वेक्टर। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द होस्ट प्लांट। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स हैं उनको आपने होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हेल्प से, या फिर कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ट्रांसपोजोन्स की हेल्प से, या फिर कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, रेट्रोवायरस वेक्टर की हेल्प से। अल्टीमेटली होगा ये कि जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन था, चाहे वो एग्रोबैक्टीरियम से गया, चाहे वो वायरस की हेल्प से गया, चाहे ट्रांसपोजोन की हेल्प से गया, अंदर जाके उसके दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए अगर बन गया तो वो फिर बेसिकली क्या करेगा, siMRNA में कन्वर्ट होगा और siMRNA जो है वो बेसिकली फिर पैथोजन के mRNA की एक्सप्रेशन को बंद कर देगा। ठीक, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, द नेमेटोड स्पेसिफिक जीन हैज बीन मेंशन्ड एज डीएनए ओवर हियर नाउ। तो इन्होंने यही करा हुआ है कि एक ही लाइन में एक वर्ड को अलग नाम लिखा हुआ है, दूसरे में उसी को अलग नाम रख दिया, दैट इज व्हाई इट लुक्स कंफ्यूजिंग। The introduction of DNA means a nematode specific gene was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell. तो ये मेरे पास क्या बन गए, दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, और ये क्या बन जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये वाला। उससे आरएनए इनिशिएट होगा, कैसे, बिकॉज ये खुद siMRNA में कन्वर्ट होगा, फिर आगे ये RISC से अटैच करके पैथोजन के mRNA को ब्रेक करेगा। Hence, there will be silencing of the specific mRNA of the nematode. And the consequence was that the parasite could not survive in the transgenic host. Transgenic host को किसको कहते हैं, जिसके अंदर nematode specific gene इंट्रोड्यूस किए थे। were introduced. तो वो ट्रांसजेनिक होस्ट है, उसके अंदर आरएनए इंटरफेरेंस चालू हो गया जो कि वैसे नेचुरली काम नहीं कर रहा था। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। ये रहा यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट। ये इधर वाला जो पिक्चर है किसका है, ट्रांसजेनिक प्लांट का है, जिसके अंदर आपने डेलिबरेटली नेमेटोड डाला, लेकिन पहले से उसको बेसिकली आरएनए आए दिया हुआ था। तो इसमें नॉट्स के साइज कितने दिख रहे हैं, है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। दीज आर द नॉट्स इन दिस टाइप ऑफ प्लांट जिसमें आपने आरएनए इंड्यूस किया, ये रहा नॉट का साइज। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। सिचुएशन इन शॉर्ट मैं सम अप कर देता हूँ एक लाइन में। वो क्या है कि इन्फेक्टेड प्लांट सेल है, उसके अंदर राउंडवर्म पैरासाइट है, उसको मारना है। प्लांट सेल नॉर्मली खुद उसको ये करना चाहिए था, पैथोजन के एमआरएनए को डाइजेस्ट करना चाहिए था थ्रू द टेक्निक कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया तो हमने क्या करना है, प्लांट को बाहर से एक जीन देना है जिसका नाम है नेमेटोड स्पेसिफिक जीन। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन कैसे दे सकते हैं, टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से, रेट्रोवायरस की हेल्प से, ट्रांसपोजोन की हेल्प से। तो जब आपने नेमेटोड स्पेसिफिक जीन प्लांट सेल को दिया तो वो जीन बेसिकली एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो उससे बेसिकली क्या होगा, siMRNA बनेंगे, siMRNA बनेंगे तो वो पैथोजन के आरएनए को वाया RISC ब्रेक डाउन कर देंगे। तो बस यहाँ पे जो टर्म्स हैं, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ऑफ द पैथोजन ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, दिस वन,
ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आएगा कहाँ से? रेट्रोवायरस वेक्टर्स की हेल्प से, ट्रांसपोज़ोन्स की हेल्प से या एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से। ठीक है, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स हमने डाल दिए। तो इसमें एक छोटा-सा वेरिएशन आप ये समझ सकते हैं कि जो आप एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से जो डालते हैं, तो आप बेसिकली नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप रेट्रोवायरस की हेल्प से या ट्रांसपोज़ोन्स की हेल्प से डालेंगे तो कोई नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डालना कंपल्सरी नहीं है। आप बेसिकली बाहर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन की एक्सप्रेशन करवा के क्या बनवा लेंगे? एमआरएनए। उस एमआरएनए को रेट्रोवायरसेस या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोज़ोन्स की हेल्प से प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आया समझ में? If we want to introduce nematode specific genes in the plant cell, तो आप एग्रोबैक्टीरियम का टीए प्लाज्मिड यूज कर लो। बट कोई जरूरी नहीं कि आपको जीन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप डायरेक्टली एमआरएनए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेल के अंदर। एमआरएनए कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? इनकी हेल्प से। और वो एमआरएनए करेगा क्या? अल्टीमेटली पर्पज वही, अगर जीन डालेंगे तो भी यही बनना है, अगर डायरेक्टली यही डालेंगे तो ये तो है ही, फिर अल्टीमेटली ये बनना है, और उससे आपने आरआईएससी के थ्रू इसको ब्रेक डाउन करना है एमआरएनए ऑफ पैथोजन को। ठीक है, so I hope it's clear to everyone now. I would actually upload more videos on biotechnology. Till then, keep learning from this content, RNA interference, and keep sharing with your friends also. Keep liking and subscribing. I know all of you have my WhatsApp number, तो आप मेरे को उस पर मैसेज करके पूछते रहते हो। I would suggest comment on the videos also. इधर अगर डाउट पूछोगे थोड़ा सा, the channel would actually get more mileage. तो थोड़ा सा और लोगों को भी फायदा होगा इससे पढ़ के। ठीक है, सो यू ऑल्सो स्प्रेड द नॉलेज अबाउट द चैनल टू योर फ्रेंड्स। थोड़ा अपने दोस्तों को बताओ, एंड कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी वीडियो। थैंक यू।